पेरेंट्स के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसके अंदर पार्टनर्स हैं, वो किड्स भी हैं। सो किड्स सामने होने चाहिए कि हमारे बारे में क्या आप बात करने वाले हैं, हमें भी तो बताओ। देयर इज नो प्रॉब्लम इन इस्लाम कि आप दोनों को मालूम होना चाहिए, इनको इनके राइट्स पता होने चाहिए, आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। इस्लाम ने कभी नहीं छुपाया है। कोशिश करेंगे हम दोनों पर बात करें, पेरेंट्स से भी we can have a discussion with the parents and with the kids as well, what you are supposed to do and what is your responsibility as well towards the tarbiyah of the kids. So what is this by the way? Aam ki gutli. Yeah, I gave the example in my majlis as well. If I say Ali, there is a whole tree inside of this seed, will you accept this or not? No? He said no. Why? Of course. So it's possible in future, it has the capacity to convert into a big tree. Okay, so what are you supposed to do? If I throw this seed, so the whole tree will come out. What you're supposed to do? Huh? So उसको प्लान करना होगा, प्लान करने के लिए क्या होगा? सॉइल चाहिए होगी, सॉइल के बाद उसको क्या चाहिए होगा? And then ये क्या करना है? आपको जो है उसको प्रोटेक्ट करना होगा। डिफरेंट जो होंगे पेस्ट्स हैं, so from different pests we need to save as well. तो आप उसको जब तक बचाएंगे नहीं, एक फार्मर, एक किसान उसको कीड़े कीटाणु से नहीं बचाएगा, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Holy Quran this particular verse. It's a very amazing verse. वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूने उम्महातिकुम। इंग्लिश ट्रांसलेशन इज देयर, मैं उर्दू में कहता हूँ। खुदा ने तुम्हारी माओं के पेट से तुमको निकाला इस हाल में ला तालमून शैया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। गालिब आप सब जानते थे जब आए थे इस दुनिया में। You didn't know, हम अली इब्न अबी तालिब नहीं है कि सूरह की कुरान की तिलावत करते हुए, वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो नूरी हम खाकी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ला तालमून शैया वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफइदा। खुदा ने आपको तीन चीजें दी हैं। There are three things that Allah has given to you. Number one is وجعل السمع. What is sam? Sam, you have the capacity of wal absar. These are the two things. Wal afida. Afida is your heart. Your heart. لعلكم تشكرون. So that you can do शुक्र of Allah subhanahu wa ta'ala. आपको अगर इल्म हासिल करना है, वो कितने सेंसेस से जाएगा? How many things? Your eyes, your ears. These are the two things that the kids will learn. And the qalb. आप कहेंगे मौलाना qalb के जरिए से कैसे? इस qalb से wal afida, the meaning of afida is this heart. Whenever in the Holy Quran, most of the cases, when qulub, afida, fu'ad, the plural of fu'ad is afida. Whenever it is mentioned in the Holy Quran, it means your soul, your ruh. So there are few things that are materialistic world ke andar, in their materialistic world you can see and you can hear. But you have a heart, as in you have a soul, which can see the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. This is called alam al-shuhud, that the curtains will be removed. So the net result is, what you're supposed to do, you're supposed to do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. What is this? Yeah? There is a fight between brain and heart. Okay? From here. Heart to love में है ना, क्या नहीं कहना है? जी, आप मुझे बताइए क्या ये इससे आप क्या हासिल कर सकते हैं? What is the lesson you can get from this particular? What is it? What it is telling about? Emotions. Okay. Emotions are always fighting with intellectual. किसकी सुनने की है? Emotions or intellect? Depends. हाँ. कहते बीबी किस जगह पर है? Emotions क्या नहीं है? Intellect क्या नहीं है? तो मौलाना उनको पूछ के बताऊंगा मैं। जी. किसको क्या क्या और क्या आप बता सकते हैं? देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको दो पावर्स दी। Allah subhanahu wa ta'ala has given you different
ये अच्छा काम किया. Allah subhanahu wa ta'ala has given you different powers. Power of desire, power of intellect. Power of desire, power of intellect. What is power of desire? Desire, you have a desire to do this. You want to become famous, Ali. I should be on this end. People are looking at me and I want to become famous. I want to have how many followers? Millions of followers. Huh? A boy came to me in Madrasa. He told me, Maulana, I have 700 followers. Huh? I said, then what? So what? So we need to become known as well, famous. This is one desire. Okay, if you ask for dad, the dad will say, I need money. Dobra, morning. I need. So there are some other desires as well. So many desires are there. This is one thing. You like this, you like that. I don't like this, this is desire. This is in the heart. Not only this heart. This is one of the, I can say, कि काम है आपके रूह का, कि रूह को ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है? But there is one thing which your akal says, that is right and that one is wrong. Akal says, to cheat someone, is it right or wrong, Ali? I know your name, I know Khalid, I know some other Ali as well, some Misa, where is that? Misa, yes, I know Misa. Misa, yeah. So I'm giving you respite, huh? So I'm going to Misa. Okay. So Misa, so what happens? I know to cheat someone is haram. The Akal says, but I want to purchase an iPhone 15, I want to have some money. Oh, this person doesn't know the prices. Your heart says, oh, I need money. Now there is a whole fight. Your heart says, you need money. Your akal says, don't cheat someone. It's haram. That's not fair to cheat someone. There's a whole fight between your heart and your akal. Now the question is this, who wins this battle? जो ये battle को जीत जाएगा, वो जो है अब देखा जाएगा. अगर आपकी अक्ल अगर आपकी जीत गई, your akal wins, then it will tell the heart, shut up, I don't want to listen to you. It's haram. I won't do this. Looking towards Namaram, it is haram. I will not look at Namaram. But when it comes to heart, if heart says, hey, shut up, I want money. Okay, when the akal was telling you, don't do this thing. So now, who has won the battle? The heart has won the battle. Now the akal will say, now I will guide you how to cheat. That is the case. And that's what the Holy Quran says. We have shown you both the paths. You want to do kufr or you want to do shukr. And the previous verse says, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. We have come to do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. जो बैटल है जो हमारे अंदर चल रही होती है, कौन विन करेगा इस बैटल को? जो विन कर गया, अक्ल ने विन कर गया. So you are on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But if your heart is winning, then your aql will not work. Aql will tell you how to cheat. Now, aql will tell you how to look towards Namaram like this and that. So it will guide you. Now, when it comes to the greater goals of parenting, now what to do? These kids, when all of us, when we come to this world, we don't know actually. We need to reach, we have to reach out to Allah subhanahu wa ta'ala, खुदा तक पहुंचने की सफर है. मैंने जैसे कहा कि the seed has the capacity to convert into tree. But there are some hurdles. ये hurdles को अगर आपने जवाब नहीं दिया, ये कभी भी ये seed tree के अंदर convert नहीं हो सकता. आपको पहुंचना है खुदा तक. ये जो है जर्नी है, इस जर्नी के अंदर कुछ डिफिकल्टीज आएंगी. आप एज अ पेरेंट, आपको खुदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन बच्चों की. यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अल्लाह हमारा रब है, और वैसे हमारा रब, अल्लाह ने जैसे हमारी तरबियत की है, इन द सेम वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स अस टू डू द तरबिया ऑफ योर किड्स. वन ऑफ द मेजर इशू इज दिस. अल्लाह हमारी तरबियत करना चाहता था, उसने किसको भेजा? He cannot come himself. Whom did he send? Aima. Okay, Aima for the leaders or the managers? Oh, so in the corporate sector, they know this. What is the difference between a leader and a
the manager. Manager says this, go there, do this thing. I'm not doing, I'm sitting here. And what the leader does? He reaches there and he says, I have already reached, come here. So our Aima were leaders or managers? They were the leaders. They had reached that stage and they were asking, Ya Allah, I'm already there. Reach. So Allah is sending those people, they have already achieved that thing and they are asking from you. And now He is saying that you become the role models. So how can I teach them? You want to recite Quran? Quran नहीं पढ़ते है तू? मैं एक कुरान की आयत नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ूंगा. So you are a manager, you are not a leader. ये कभी भी ऐसा नहीं होगा. But there are so many parents who come to me. They Maulana, we want to send our kids to Qom in Najaf. What should we do? My reply is always this. Samahani, sorry, you will not decide. Who will decide to go to Qom in Najaf? They themselves. They themselves, they will decide that I would like to go to Najaf or Qom or not. Why? What sort of environment have you given to your kids? क्या environment दिया है? आपने उसको आशिक बनाया दुनिया का. He is आशिक of this world. And now over there in Qom and Najaf, he will not get those in this dunya. He will not get. So he will not choose that path. What you are supposed to do is to give the right environment, like the farmer. आप उसको सही environment दीजिए, ये खुद choose करेगा. आपको रॉकेट साइंस चलाने की जरूरत नहीं है. एक और डिफरेंस क्या है पता है? फार्मर के लिए, फार्मर को वो करनी है लैंड. He has to plow the land, and then he has to water. He has to do all this stuff. Allah has made your job very easy. The land is already ready. The land of fitrat. It's already there. Allah has made that. And the seed of fitra, everything is there. What you are supposed to do is to protect them from kitana, from different pests. What are these pests? I want to ask. किन चीजों से बच्चों को बचाना है? आपको भी अपने आप को किस चीज से बचाना है? If this will become better. As so, there are some kitanos which will be coming through two different sources. The Holy Quran said. What are these two? Sam'a wal basar. Some is basar. So the kitano will be coming from here. You have to protect. What does it mean? The kitano will be coming from here. Yes. Kitano, you know kitano? Germs, pests, insects. So your body is pure, पाकीज़ा है. कुछ चीजें जो यहाँ से आएंगी, वो सब का सब जो बर्बाद कर देंगी. What are these? Give examples. Give examples. ना मेरा. मौलाना सारे आसान बातें करें. ये देखना दज्जाल शरीफ. It's not शरीफ. It's not शरीफ. It's enough. जो देखने का है और सुनने का है. अल्लाह ने कहा ये दो सोर्सेस से क्या देख रहा है आपका बच्चा, क्या सुन रहा है आपका बच्चा. Many times we feel that our kids are here. Alhamdulillah. So those who have grown up in front of me, mashallah, 50, 60, 70 years of age, your time was mashallah very good. Alhamdulillah. आप लोग अपनी जिंदगी जी ली. ये जो अब आ रहे हैं और इनके बाद जो आएंगे, we are worried actually. The things are moving so fastly, and many a times we take a decision and then later on we are regretting. ये मैंने क्या गलती की है? खुदा कह रहा है तरबियत यहाँ से होनी. पहले क्या होता था? अम्मी और अब्बू कहते थे, my fathers used to say, hey, with whom are you sitting? You are in a bad company. Don't sit with this person. ये तुमको जो है गाली सिखाएगा, ये तुमको ये सिखाएगा. Now, who is the friend? What is the meaning of friendship? The meaning of friendship is with whom you spend time. This is the thing. Now we are virtual friends. We are virtual friends here. We have a virtual life nowadays. यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, you don't know what Bhutan is happening. हमने बहुत सारी चीजें जो छोटे बच्चे भी बैठे हैं, हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं. Be careful. ये जो है आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं. I was discussing that in America, one of the states has passed the law that before the age of 13 or 14, it's 14 now. 14, it's now illegal. Now they've sent this bill, it has to be passed from Senate, that it is illegal to use social media.
हम क्या करते हैं, मौलाना खाना नहीं खा रहा, इसको दे दिया, इट्स वेरी इजी फॉर अस, क्यों उसको बिजी कर दिया। ना द किड इज बिजी, और बच्चा क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, अब वो खेल रहा है, ये सब वो चल रहा है उसका। अब आप उसको आपने मोबाइल दिया है, सो द किड्स टेक यू एज should I use this? My dad is a macho man, the Superman, he can do anything. Yeah, they consider you like this, and the mother as well. Now you have given something, they feel it's a good thing. Then one day you come and snatch this from your kid. He's like, hey Baba, so if it was good, then why it was given, and if it is bad, why you are snatching it from me? Please be careful. मैं जानता हूँ आप लोग बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट्स होंगे, कुछ होंगे, it should be restricted. Some cases I tell you, because I sit with parents because we have a big community, very big community. Last year I was saying that more than 100 parents I sat with the problematic cases. 7 out of 10 Masail is going back to social media, screen time. बच्चा जो है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। One of the difficult thing is this. Baba, we are on the member. I can see who is dozing off. So you have to recite salawat Muhammad wa ali Muhammad. Sometimes the expectation is that Maulana वो नारे वाली मस्जिद पढ़ो, पब्लिक सारी सो जाती है, थकी आती है। But what is the reason? The reason is this mobile, this screen time. Messages coming. I myself am tired now. The way towards which we are heading actually. If you get some time, go and check your screen time. Screen time check कीजिएगा। किसी का अगर 2 घंटे से नीचे है तो शुक्र का सजदा अदा कीजिएगा। अगर स्क्रीन टाइम जो 2 आवर्स से नीचे है, शुक्र के सजदे कीजिएगा। Where we are heading actually? नहीं। इतना टाइम इसमें हम बर्बाद कर रहे हैं। इससे एडिक्शन से क्या होता है? I'll tell you. So this is the stronger, हम लोग जो है, जो बॉडी की जो मसल है, the most powerful muscle is this one now. Why? Too much exercise. Maulana रोजाना भी exercise करता हूँ, इसलिए I am doing exercise. So I had a discussion with that Allah has given you this hand. If you do not have this thumb, you cannot close your button. So I give examples that this everything on that. A young boy came to me, Maulana, you forgot we cannot use the mobile with one hand. बोलता है आप forgot. Right. केसेस आते हैं हमारे पास, एडिक्शन के केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। एडिक्शन के केसेस क्या है? A parent came to me, a father came to me and said, Maulana, I have kept password everywhere. Everywhere I have kept the password. Mobile, TV. My young boy of 11 or 12 years, he wakes up at 2 o'clock and goes and checks. कि क्या हो रहा है? भाई पासवर्ड है या नहीं? ये मुझे बताइए, रात के 2 बजे कौन उठता है नशा करने वाला? तो चेक कर रहा होता है कि ये बच्चे का हाल है। वो तो मैंने उसको जो है 2 o'clock. Then he couldn't get that actually password. He opened my laptop and he started watching the YouTube videos on the laptop. मैंने उसको बोलता मैं थक आ गया, मैंने उसको मारना ठीक नहीं, मैं आता हूँ उससे बात करूँगा। वो तो उसको मैंने मारा, वो तो मार दिया मैंने। बोलते 2 घंटे बाद फजर के अंदर मैं देख रहा हूँ, फिर जो है मेरा लैपटॉप लेके वो वीडियोस देख रहा है। I said this is a clear sign of addiction. Addiction का मतलब क्या होता है? You cannot live without this. You cannot. Before, when we used to go, we used to say, Baba, where is the cafeteria? When we used to go to the hotel, where is the cafeteria? This and that. The first question is, what is the Wi-Fi? The password of the Wi-Fi. पहला क्वेश्चन नहीं होता है। See, I am not against to this restriction. आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा बच्चा क्या देखेगा। The things which are available nowadays, things are changing rapidly now. Before we used to listen to the rhymes, Johnny Johnny, yes Papa. Now you go and Johnny Johnny, yes Papa. How many papas are there? This is one of the difficult. Now they are exposed. You will say, Maulana, I am not giving them. Papa, whatever you do, they have this thing. आपने उसको एक्सपोज किया है, इसके दिमाग में क्या जा रहा है? Now because of this, इसकी जो आइडियोलॉजीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ये कुछ और फिक्र करेगा, ये कुछ और सोचेगा। This is one thing.
I don't want to go in detail. देखिए 3 चीजें हैं जो पेरेंटिंग की हैं, जो आपको करने की है. 3 C's I call it. These are 3 C's. Confidence, creativity, character. If अगर आपके पास 2 चीज इसमें से मिसिंग है, सोचिएगा which thing is missing in life? And the parents, please keep an eye on that. Confidence, creativity, and character. This is called protection. मैंने आपको कहा था आपको प्रोटेक्ट करना है. ये चीज अगर आपने प्रोवाइड कर दी आपके बच्चों को, ये बच्चे के अंदर जो अंदर छुपा हुआ है ना, वो सब बाहर आएगा. वो थ्राइव करेगा, वो बहुत आगे जाएगा. इनके अंदर कैपेसिटी है. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है. प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. दैट ओ दोज़ हू हैव बिलीव्ड, जो ईमान लेकर आए हो, खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को इससे बचाओ. नार से. नार इज फायर. फायर इज सिंबॉलिक हियर. फायर इज सिंबॉलिक. एनीथिंग व्हिच डिस्ट्रॉयज इज फायर. कौन-कौन सी चीज इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? कीप एन आई ऑन दैट. कीप एन आई. इसके अखलाक को जो बुरा कर सकती हैं, उसके अमल को जो है ना बुरा कर सकती हैं. कीप एन आई. एज अ फादर, एज अ मदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है. इसको इमाम ज़मान के लश्कर में लेकर जाना है मुझे. ये नहीं जाएगा ऐसे. अगर करबला के अंदर आप देखें, करबला समटाइम्स वी कीप एन आई ऑन अली अकबर अलैहिस्सलाम, ऑन मोहम्मद. This is one way you are seeing that honor Muhammad and Ali Akbar is there. There is another way to look behind these characters. There are families actually. There is family of Fatima Zahra salamullah and the other family is family of Hinda. 2 families हैं जो काम कर रही हैं कि जो उसको वहां तक लेकर जा रहे हैं. मैं अगर चाहता हूँ कि वाकई इमाम ज़मान के अंदर ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे प्रोटेक्ट करना होगा. इसके अंदर आप मुझे समझाइए ये क्यों तस्वीर ऐसे में बनाई है? Why? So there are 3 things, confidence, creativity and character. Why is it like this? Is there anyone? Raise your hand. The foundation. The foundation. Excellent. The foundation for these 2 is confidence. If the confidence is gone, there is no creativity, there is no character. बच्चे में confidence नहीं है. Now the next question will come. How will you define confidence? To be bold? Oh, I can jump from here. I can do something. I can shout. I can. You must have seen, So these TikTokers. So they are jumping and they are taking photographs. So they have confidence. Is this the meaning of confidence? So there was a TikToker. Okay. Or he had an Instagram page. So he had so many followers. So he was given the penalty to be hanged till death. So the judge asks him, "What is your last wish?" What was his last wish? His last wish was. Last wish was. Please subscribe my channel and don't forget to like the. This is what is happening actually. ये confidence की definition है. एक्सट्रोवर्टेड और आउटस्पोकन. he can say anything. मौलाना मेरा बेटा तो ऐसे, ये तो उर्दू में हम कहते हैं मुंह फट है. Is this the meaning of confidence? Sometimes kids are introvert. Introvert means they don't speak. So this is the meaning that introvert अगर कोई है तो confidence नहीं उसके पास. या is humility opposite of confidence? अदब से humility से पेश आ रहा हूँ मैं. सही है, खासे और खाशे हूँ आपके सामने में, तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं मेरे पास. हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस? हाउ विल यू डिफाइन? ये मेरे ख्याल में. या एक और मिसाल देता हूँ. ये लेडीज जो हैं हमारे लिए हिजाब करती हैं, यू कैन सी. इज शाइनेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? बाय द वे, हु इज शी? इज देयर एनीवन? शी इज द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ Iran, Ibrahim Raisi. So she is मुहज्जबा. So कि ये जो शायर का देश में शर्म हया है, हिजाब है, इसका मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि इसके पास कॉन्फिडेंस है. ये बता रही है कि मेरी चॉइस ये है. रिस्पेक्ट दिस माय चॉइस. She has the confidence. It's the opposite of this. She has so much confidence that she says, sorry, respect my choices. सही है.
What is confidence? To be comfortable who you are. Excellent. 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 To be able to stand up to your values. To stand up for your values. Excellent. So giving oneself importance based on correct criteria. मैं शिया यानी अली इब्न अबी तालिब का मानने शिया हूँ, मैं हैदर कररार का मानने वाला हूँ, ये मेरे बिलीव्स हैं, सही है? तो इसके लिए क्या करें? आप खुद को कौन इम्पोर्टेंट समझें. You should give importance to yourself that you are the believer of Ali ibn Abi Talib alayhi wasallam. Others, if they are not accepting your belief, leave it. You should have this confidence. If you are alone, the whole world is against you. There's no problem in that. ये आपको कॉन्फिडेंस होगा, ये मेरा करेक्ट क्राइटेरिया है, आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट. फॉर ट्रूथ यू स्टैंड, द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बिकॉज आप समझते हैं कि ये चीज ठीक है, ये हक की बात है जिसके लिए मैं कर रहा हूं. मैं अब पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. इसको कहें कॉन्फिडेंस, अपने जो करेक्ट वैल्यूज हैं उसके लिए, विदाउट फीलिंग अदर्स लेस इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप दूसरों को कम ना समझिएगा, ये ख्याल कीजिएगा कि आप समझे मैं ही सब कुछ हूं, बाकी सब कचरा है. दैट्स नॉट फेयर. आप समझे कि मैं हक पर हूं, मैं राइट हूं. अब चाहे कोई आप एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी माई इंपॉर्टेंस प्लस माई लिमिटेशंस. ओके, क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ माय किड्स हैव कॉन्फिडेंस? अगर मेरे बच्चों के पास कॉन्फिडेंस अगर होगा तो क्या होगा? मैंने आपको क्या कहा था? कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट. इसके पास बच्चों के पास कॉन्फिडेंस है तो ग्रो करेंगे. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चा ग्रो नहीं करेगा. सवाल, डज अल्लाह हैव कॉन्फिडेंस इन अस? खुदा को हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है? खुदा चाह रहे हैं इनके अंदर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए. खुदा को मेरे पास कॉन्फिडेंस है. If you say yes, the next question will come. How Allah has confidence in us? He's given us the guidance, Okay. so that we can build our confidence. Okay. Ashraful Makhluqat banaya. Excellent. There is a poster. So we are hiring. Oh, I have a company. So we are hiring. Unleash your potential, CEO opportunity. So, for example, मुझे चाहिए किसके लिए? टेस्ला के लिए चाहिए. One of the biggest giants actually. सही है. या मिसाल के तौर पर Amazon के लिए चाहिए. So this is a poster. No prior experience or qualification needed. नहीं चाहिए, कोई qualification नहीं चाहिए. अच्छा. We believe in your raw potential. Join us, grow with us, and lead us as our CEO. Confidence is your abilities, is our guiding principle. Apply now and let's redefine success together. कौन सी कंपनी ऐसे पोस्टर निकालेगी? वो कह रही है मुझे CEO चाहिए, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जो है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, come and prove yourself. Have you seen a company like this? You will never ever see a job advertisement like this. Why? और सबसे पहले क्या बोलते हैं भाई? There is a capability, capacity that have you studied or not? If you want to become CEO, so these are the criteria. आपके पास education होनी चाहिए. Now see Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has sent us to this world. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. And he said to Malaika that I am going to send my vicegerent, my Khalifa on this earth. And the angel said that you want to send someone that who is going to have corruption on this land, ये फसाद मचाएगा दुनिया के अंदर. आप खुदा मैं तू उनको भेजना चाहता है. खुदा क्या कहता है? जो मैं जानता हूँ, आप जब इस दुनिया में आए थे, खुदा ने आपको पहले ही सजदा करवा दिया है. You have not proven anything. You came to this world, you are Masjudul Malaika, Sajda, you are the CEO of Allah subhanahu wa ta'ala, you are the vicegerent. Allah is saying, go and prove this. You are already my CEO, you are my vicegerent, go and prove this. In which company will you see this? किसी
कंपनी में आपको नजर नहीं आएगा। खुदा को बिलीव है आपके अंदर, यू कैन डू दिस इन ईच वन ऑफ यू, ही हैज दिस बिलीफ। व्हाट अबाउट माय किड्स? यू शुड हैव द सेम बिलीव इन योर किड्स एज वेल, यू कैन डू दिस। मुझे जो है कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, सही है? मैं नहीं जानना चाहता इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस? गालिब बच्चे को चले पता है कि कॉन्फिडेंस कितना, बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि मुझे उछाला है तो मुझे पकड़ लेगा। खुदा भी हमको उछालता कर दो, कब उछालता है? मुसीबतों में, परेशानियों में, डिफिकल्टीज में उछालता है। जैसे बच्चे को यकीन है कि मैं बाप के हाथों में आ जाऊंगा, मुझे भी यकीन हो जाए मैं खुदा उनकी हाथों में आऊंगा। यकीन क्या खुदा तूने फेंका है, तू ही मुझे जो है बचाना है, तेरे हाथों में दोबारा होना है, सही है? व्हाट आर द साइंस? और साइंस क्या है? देख लीजिए आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? नॉट इंटिमिडेटेड बाय समवन सोशल स्टेटस, वेल्थ और पोजीशंस। ओहो इसके पास इतना पैसा है, confidence. Whatever you do, I don't care. Here's the confidence. Yeah, confidence. Confidence की पहली निशानी आपके बच्चे में क्या है? वो इंटीमेटेड नहीं है, इसके पास माल है, दौलत है, तो इसको ये मालूम है मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा मेरे साथ है, इससे ना। दूसरी चीज, he will not have identity crisis. One of the biggest challenges to the youth is identity crisis. Who am I? Identity crisis का मतलब यही होता है जब ये टीनेजर्स आपको हो जाते हैं, तो देखो होगा आईने के सामने खड़े होते हैं, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक जो बाहर घुमा रहे होते हैं अपने, क्यों? दूसरों को बताना चाहते हैं आई एम देयर, ड्रेसिंग इज चेंज, बताना चाहते हैं मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जब भी लगा रहे हैं और कुछ अजीब गरीब कर रहे हैं, टिकटॉक के बाद क्यों कर रही हैं? The problem is with the identity crisis. उसको पता नहीं वो है कौन। अगर उसको आपने समझा दिया कि तू है कौन, तेरा कनेक्शन अहलुल बैत के साथ है, उसको दूसरों की तरफ से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा खुदा की तरफ से लाइक आ चुका है मुझे, उसे दूसरों की लाइक की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर। थर्ड, सेल्फ वर्थ, वो जाने मेरी खुद की वर्थ क्या है। जब अपनी वर्थ नहीं समझते सेल्फ वर्थ, दूसरों के पीछे भाग रहा होता है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, हाँ, और फिर पोस्ट लगा के देख रहा होता है कितना लाइक किया, कितनों ने जगह कमेंट्स करे। क्यों? वो अपनी वर्थ को जानता नहीं, वो अपनी वर्थ को समझता है कि दूसरे लोग मुझे वो वर्थ देंगे। उसको अब तक ये समझ में नहीं आया मुझे दूसरों से वर्थ नहीं मिलेगी, मुझे वर्थ मिलेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। एक्नॉलेज योर ओन स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूशंस, उसको खुद को पता नहीं मेरे पास क्या मौजूद है, आई हैव दिस कैपेसिटी, आई कैन डू दिस, rather than comparing myself with others, and दूसरों को look down upon नहीं करना है। आगे चलो जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए पेरेंट्स के लिए जहाँ तक लेकर आना चाहता हूँ। जो चीज कॉन्फिडेंस को शटर कर देती है वो कंडीशनल रिस्पेक्ट है। अगर मार्क्स अच्छे लेकर आओगे तो रिस्पेक्ट है, मार्क्स सही नहीं लेकर आए तो रिस्पेक्ट, जो नॉट ब्रिंग गुड मार्क्स देयर इज नो रिस्पेक्ट। याद रखिएगा, द रिस्पेक्ट शुड नॉट बी कंडीशनल, द रिस्पेक्ट शुड बी अनकंडीशनल। बगैर शर्त और शराइत को होगी, तुम जो कुछ भी कर दो, whatever you do, I will respect you. Whatever you do, whatever the hudaru you have done. ये क्या हो सकता है? ये रिस्पेक्ट को कब खत्म किया जा सकता है? आपसे सवाल कर रहा हूं, कैसे रिस्पेक्ट को शटर किया जा सकता है? Give me examples of the youths. How the respect can be shattered? क्या हो सकते हैं? रिस्पेक्ट कैसे खत्म किया जा सकती है? Respect of the youths or respect of Anyone. the parents? Parents can shatter the respect. You can shatter the respect of anyone. How the respect can be shattered? Give me some examples. minding mistakes, Huh? minding mistakes, Minding mistakes. minding. Reminding their mistakes is one thing. Yes. If you're reminding their mistakes again and again, Papa, we always say, do mistakes, but do new mistakes. इंसान गलती करता है, वो मसला नहीं है। गलती करके ही इंसान सीखता है। He learns. The kids will do mistakes. They will do.
So from whom are you expecting? They will do this mistake. We ourselves we do mistakes. If we do mistakes, याद रखिएगा जो कुछ भी हो जाए, you should have a dialogue. You should have a dialogue. बातचीत होगी, disrespect नहीं होगी. वजह क्या है? Worst thing क्या हो सकती है? मैं expect करता हूँ आप जवाब देंगे उसका. Disrespect की worst thing क्या हो सकती है? Give me reply. क्या हो सकती है? The child becomes No. How you disrespect the child? holding inside. I heard something. Beating. Yes. Who said? Excellent. उसकी मार लगाइए आप. याद रखिएगा. अगर बच्चे की आपने मार लगाई, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह हो जाएगा. वो कभी ऊपर नहीं आ सकता. Whatever they do, कभी हाथ नहीं आएगा. आप खुदा ने इख्तियार नहीं दिया. You are their father, you are their mothers, but आप उनके मालिक नहीं हैं. मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. आपको संभालने का है, इनकी तरबियत करने का है. जिस शख्स ने अपने बच्चों को मारा, ये क्या हुआ? ये असल में होता क्या? और क्या होता? If he has done something, for example, you have done something wrong, and you are the culprit, Saman, you are the culprit. I come and I beat you. What happens? I will become the culprit and you will become the victim. You will start hitting me. बच्चे को मारना नहीं है. देखिए, मारते किसको हैं? जिसके पास अक्ल नहीं होती. गधे को चला रहे हो तो गधे को चलाने का अगर नहीं चला तो पीछे थोड़ा थोड़ा क्या करते उसको तो मारते क्यों चल रहे हैं. अगर आपने अपने बच्चों को गधा समझा नाउज़ुबिल्लाह तो भी बात अलग है. फिर आप मारे उनको. अगर ये गधे जो आपको भी ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बच्चा ये साबित करके देता है कि तुम मुझे ये समझ रहे हो, मैं तुमको ये साबित करके दूंगा. तुम मुझे गधा समझ रहे हो, मैं तुमको गधा बनकर दिखाऊंगा. If you tell your kids, you're a loser, you can't do anything, he will prove this. Dad, I will prove this, I can't do anything. But if you consider this, आप अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, I want to see my child to become Maulana. Okay? You want to do this? आप बच्चे को अगर मौलाना देखना चाहते हैं, मौलाना की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? आगा साहब, the same way you should start respecting your kid. ये बच्चा साबित करके देगा मैं मौलाना बनूंगा. बाबा मौलाना बनकर दिखाऊंगा. I will become Maulana because you have confidence in me. I will show this. But from what I know, that it is recommended that you advise your children, teach them namaz, salah. When they reach a particular age, up to like 7 years, it's advised to even hit them. So this is a question he has raised, brother, that if your kid is not reciting namaz and he has become baligh, so you can hit. Do you know? This is the last stage. This is the last stage. The first stage is to have a dialogue, to have a discussion, that you convince. Last stage is, do you know, in riwayat it is mentioned how much to hit. Uska kaan pakad ke, this is maximum. This is maximum you can do. And you can hit, it should not become red. Really do this thing? हम जब उसको मारते हैं तो वाकई में कपड़े धो रहे होते हैं. That is haram. I'll bring this issue. If someone hits his child or children, or a mother is hitting, if it becomes red, the diya is different. If it becomes green, the diya is different. If it becomes black, the diya is different. On body, diya is different. On face, the diya becomes double. मैं थोड़ा सा कैलकुलेट आपसे करवाऊँ मैं कितना कैलकुलेशन होगी. मुझे याद पड़ रहा है अगर आप चेहरे को मारेंगे it will go up to red होने से it will go up to $500 and एक थप्पड़ तो लगेगा, एक जो स्लैप होगा उसे $500 से स्टार्ट होता है. The father, the one who is hit, the father, if he has hit his child, he has to pay. If you have done something wrong, please जाइए माफी मांगिएगा. If you have hit someone, you cannot further hit your parents. If you have hit your friends and it had become red, तो आपको जाके माफी मांगिए. या तो पे करें
या तो माफी मांगे। बच्चों को मारे तो किससे माफी मांगे? अल्लाह से कि बच्चों से। अदरवाइज यू पे, पैसा दीजिए उसको, आपको जो पैसा देना होगा आप उसे माफी मांगेंगे। We are not supposed to hit our kids, sorry। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मारकर जिसको मारा जाता है वो जानवर है, जानवर को भी नहीं मारते भाई, उसको भी जो है नाम है कोशिश करें नहीं मारे। अगर उसको हिट किया है, अब क्या कहेंगे मौलाना ये सख्त है, सॉरी, हिटिंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। एक शख्स आया मासूम के पास, आगे पता चला भाई अपनी बीवी को मारता है, तो जवाब में मासूम ने क्या कहा कि ये ज्यादा लायक है कि इसकी पिटाई हो, इस मर्द की पहले पिटाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिकॉज़ अल्लाह इज गिविंग यू द पावर, यू आर हिटिंग योर वाइफ, ये सही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, जो कुछ भी हो जाए आपका क्या होगा साथ में, यू विल हैव अ डायलॉग होगा, बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यू विल सिट, अभी सॉरी लियाकत, I will say लियाकत, why did you do that? I'll tell you some questions. The first thing is, the first question should be, what did you do? The first question. He will explain himself, Baba, I did that thing. The second question should be, why did you do that thing? Then he will explain. The third question should be, do you think that it was right? He will say, no. So who has accepted that this is my mistake? The kid himself should accept this. He should realize that मैं गलती पर था। अगर आप उसको तू ये ऐसा करता है, तू वैसा करता है, आप ये काम करेंगे तो होगा क्या, गलती उसने की थी, मुजरिम कौन बन गया है, माँ बाप बने हुए हैं। वो रियलाइज करे। अगर वो उसके दिमाग में चलेगा मैंने गलत किया था, अब आप उससे फोर्थ क्वेश्चन पूछें, नाउ व्हाट शुड वी डू, व्हाट इज द सॉल्यूशन? वो खुद सॉल्यूशन बताएगा। जिस सॉल्यूशन को वो बताएगा वो उसको ओन करेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद डिसाइड किया मुझे ये करना चाहिए। Many times what do we do? हम इम्पोज कर देते हैं बच्चों के ऊपर, क्या हम इम्पोज करते हैं, you should do this. He is not owning this. Sorry, you are imposing on me. I don't want this. Sorry, you are imposing me. उसको ओन नहीं करता है। मतलब घर के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? घर के अंदर आपके पास रूल्स होने चाहिए, ग्राउंड रूल्स होने चाहिए। ग्राउंड रूल्स मींस मतलब Ghalib, you want to play cricket or football? So Kazim bhai should ask, okay, what's the best time? You tell me. Okay, in 24 hours, कौन कितना घंटा आपको खेलना चाहिए? So the discussion is starting. अब वो कहता है मुझे मिसाल के तौर पे 4 घंटे खेलना है, and Kazim bhai says sorry, 4 घंटे ज़्यादा है। नहीं सब अच्छा ये नहीं कि ज़्यादा है, डायरेक्ट है, ये कहें क्या नहीं समझते कि 4 घंटे जो है तुम्हारे लिए ज़्यादा होता है, क्या नहीं समझते हैं? आपको काउंसलिंग करनी होगी बच्चों के साथ। काउंसलर क्या करता है याद रखिएगा, काउंसलर का काम जवाब देना नहीं होता है, काउंसलर का काम रास्ता बताना होता है। आप उसको ऑप्शंस देते हैं, देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है, और आप उसको गाइड करते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये बच्चा उस ऑप्शन को खुद जाके सिलेक्ट करे। क्यों? उसको खुदा ने अक्ल दी है, बिकॉज ही नोज इज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मेनी टाइम्स ही डजंट नो दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। ये एज अ पेरेंट आपका काम है इसको सही और गलत आपको बताना है, और फिर अगर उसको पता चल जाए इसके आपने किसी चीज को उसको इम्पोज किया, आपके सामने तो इंसान बना हुआ और बाप के सामने फरिश्ते बने हुए हैं, मेरा फादर गोज आउट, वल्लाही गुनाह हैपेंस। व्हाई? बिकॉज इसके दिमाग में अभी तक घुसा नहीं है कि ये चीज गलत है। सो यू शुड हैव अ, मैं आपको बार बार कहूंगा, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी मुश्किल है बिटवीन husband and the wife, between father and the mother, or between father and the son or the daughter, or between the siblings as well, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा रूल क्या होगा? डायलॉग होगा, डिस्कशन होगी। डायलॉग के अंदर आपने क्या कहा? आपको मैंने क्वेश्चंस बताए, व्हाट डिड यू डू, अगर कोई मिस्टेक हुई है व्हाट डिड यू डू, नंबर 2 व्हाई डिड यू डू, नंबर 3 डू यू थिंक इट इज करेक्ट, नंबर 4 व्हाट इज द सॉल्यूशन। इसका जवाब वो देगा। अगर वो नहीं दे पा रहा है आप उसको गाइड करेंगे। ये रास्ते ये हैं। आप अगर इम्पोज करना शुरू करेंगे नहीं हो सकेगा। देखिए मैं यहीं पर इसको शायद रुकूंगा, मैं उसको मैं इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा आगे लेके चलूंगा। खुदा ने कहा वलिल्लाहि अल इज्जत व लिरसूल व लिल, इज्जत जो है अल्लाह ने, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और किसके लिए? मोमिन के लिए। कंडीशनल है।
कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है। आप जो कुछ भी आइमा के सामने क्या होता था, आगे कहता मौला मैंने शराब पी, मौला मैंने ये कर दिया, तो क्या हुआ कल के दिन से वो क्या कहते हैं मौला मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाँ, you never ever see this. Whatever you did, come back and rectify. उसको ठीक करने की कोशिश करें। डिसरिस्पेक्ट से मामला हल नहीं होगा। डिसरिस्पेक्ट से क्या करें, यू आर पुटिंग दिस अंडर द कार्पेट, वो सोल्यूशन नहीं है, मार धाड़ सोल्यूशन नहीं है, चीखना चिल्लाना सोल्यूशन नहीं है। कोई सवाल हो यहाँ पर भी सवाल करें, इसको इंशाअल्लाह इसकी एक आगे मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। इफ यू गो होम एंड यू सी दिस क्या होगा? हाँ, व्हाट डू यू ए શું કરે છે તું? मेरी दीवारें खराब कर दी तूने। There was a video actually. There was a video. If I get the link, I'll show you. There was a scenario. एक father आता है, अपने बच्चे को कैसे देखता है, उसे खराब करा, तो उसमें shout करता है, Hey, what did you do? तुमने सारा खराब कर दिया। बच्चा सहम जाता है। ओके? अभी बच्चा जाता अपने बहन के पास, बहन वही कराएगी, he is doing the same. Hey, what did you do? तुमने जो है मेरा सारा काम खराब कर दिया। बच्चे को नहीं करते हैं। आपने क्या किया उसके साथ? आप क्या करना करें सिचुएशन के अंदर? क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे? डायलॉग करेंगे। आप क्या जाके करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? सवालों को छोड़ दिया तो बहुत छोटा है। किस करेंगे? नंबर 1 व्हाट एल्स? अप्रिसिएशन छोटा है, सही है, उसका हाथ आपने फेर दिया, फिर क्या करेंगे? याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं उससे आपको सब्स्टिट्यूट देना होगा। What should you do? Wipe it out, try to show him that the better way to do it. Yes. उसको करने देगा नहीं, सारा खराब करेगा, जनाना निकाल देगा दादा का कुछ कर सकते, बस करो बेटा, ऐश करो जो करना। That's a good solution. उसको पेपर दे दे, please write on this. माशाल्लाह यहाँ पर अच्छा लगेगा। आपने उसको रास्ता दिखा दिया, आपने उसको मना नहीं किया तू गलत काम कर रहा है, उसको आपने बहुत स्मार्टली जो है उसको सही डायरेक्शन दे दी, उसको पता भी नहीं चला। और उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बाकी है, सेल्फ एस्टीम बाकी रखनी है, ये बाकी रहनी चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? वी वांट टू इंशाल्लाह डिस्कस दिस लेटर। Say, the Prophet said when somebody beats his wife, he said he should get beaten. What if the wife beats the husband? सवाल ये आया, मौलाना आपने ये हदीस बताई कि मर्द जो अपनी बीवी को अगर पिटाई लगाता है तो उसकी पिटाई का हकदार वो ज्यादा है। मौलाना अगर ये उल्टा हो तो बीवी पिटाई लगाती हो। मैं एक दफा मजलिस पढ़ रहा था कि कुछ जगहों पे पर ऐसा होता है, घर के अंदर शेर अली होते हैं, बाहर क्या होते हैं वो गुलाम अली होते हैं। फिर मैंने कहा भाई कभी कभार उल्टा होता है, घर में गुलाम अली होते हैं, बाहर शेर अली होते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। यस, मारना जो है हमारे हदीस नहीं आई कि जनाब औरत की पिटाई होनी चाहिए। सी, बीटिंग इज नॉट अलाउड। मार धार जो है इसका कल्चर ठीक नहीं है, रफ हो जाता है। आप मुझे बताइए, मारने से कोई सोल्यूशन निकलेगा? What sort of solution will you get by hitting someone? You cannot get a solution. मार के क्या कर लेंगे? हो गए, मिस्टेक हो गए, क्या करें? You should have a dialogue on that. बाबा, what's the way forward? उसका क्या हल निकाला जाए? मार से कोई भी चीज ठीक होने वाली नहीं। आप बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, there are so many questions now. Are we okay to continue for a while? Yeah. Or should we continue maybe later? दूसरा सेशन करना है कि we can continue 15 minutes? Okay. Continue. Continue Tomorrow is Sunday. ओके, क्वेश्चन इसे, जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो क्या घर वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना? कैसे करें? होली कुरान इसको बात करता है, हम उस दिन आयत पढ़ रहे थे। पहली चीज होती है, आपके पास खुद हस्बैंड और वाइफ के दरमियान खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
आपके पास यू शुड अग्री हाउ टू डिसअग्री, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आपको एक दूसरे की रेड लाइंस पता होना चाहिए। भाई मैं अगर ये इसके अपने हस्बैंड के साथ ये काम करूंगी, इसका तो पारा जो है ऊपर जाएगा। और इफ आई डू समथिंग टू माई वाइफ, तो ये जो है क्या नाम है, ये बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए एक दूसरे की रेड लाइंस। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है, अगर कोई रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, अगेन द आंसर इज हैव अ डायलॉग, हैव अ डायलॉग। मसलन उसने आकर, मतलब हस्बैंड और वाइफ में था, किसी एक जगह पे जाकर हस्बैंड ने वाइफ की बेइज्जती की सबके सामने, उसका मजाक उड़ाया सबके सामने। सही हो गया, काम हो गया। द वाइफ शुड गो एंड हैव अ डिस्कशन विद हर हस्बैंड कि देखो तुमने जो काम किया, ये काम ठीक, ये जो हर्ट हुआ है, ये चीज ठीक नहीं थी, ये तुमने बाउंड्री क्रॉस की, ये ठीक नहीं है। हैव अ, उसको रियलाइज करवाइए। रियलाइजेशन होना जरूरी है। रियलाइजेशन बहुत दफा जो है इसका बात करेंगे आगे जाके, हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप की बात करेंगे। अगर एक जगह पर ऐसे आ गए कि हाँ भाई वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा है, सही है, तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो फिर कुरान कहता है अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को, वहां से मर्द में से और औरत में से उस फैमिली मेंबर्स को बुलाएं और कंसल्ट करें, काउंसलिंग करें, आप उसका सोल्यूशन निकालें आपस में। दैट्स व्हाट द होली कुरान सेज, आपस में करें। लेकिन कि वो बात तब है कि जब आप आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। मेनी अ टाइम्स, सो मेनी केसेस केम टू अस, husband and wife, they are fighting not because of them, they have a problem. The problem is from the third person. Should I bring this? Sorry, माफ कीजिएगा। सासू माँ, she becomes a third person. तो सासू माँ जो कह रही है, वो जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी ये करके दिखाऊंगी। मैं जब बहू थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा ये कभी कभार उनके साथ, अच्छा कभी कभार उनके साथ नहीं होता भाई, बहू जो है मुश्किल है, सारा ब्लेम उसको ना, बहू के साथ प्रॉब्लम है। एक दफा बहू जो थी वो बेचारी घर का काम नहीं कर रही थी, बेचारी गाँव में घर का काम नहीं कर रही थी, तो वो जो थे हस्बैंड और द मदर, उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, इसको कैसे समझाएंगे, घर का काम भी करना है, ये सारा जो सोशल मीडिया पे बैठी होती है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, तो क्या करें आपस में। बोला एक दिन ऐसा करेंगे हम लोग, मैं झाड़ू लगाने के लिए निकलूंगी तो तुम जो बेटा पीछे से आवाज लगाना, माँ नहीं करो, माँ मैं करता हूँ, तो दे डिड द ड्रामा। तो माँ ऊपर से खड़े होकर बेटा कहता है माँ ये नहीं करो, मैं लगा दूं झाड़ू। तो बीर जो बहू थी बैठ के देख रही थी, तो बोला लड़ो नहीं, आपस में एक दिन डिसाइड कर रहे थे ये करने। तो sometimes it happens as well. See, थर्ड पर्सन की वजह से याद रखिएगा, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में ये आप डिसाइड कर लीजिए, you decide this because of the third person, you will not fight. You will not fight. You will listen. You will listen. But do not fight because of the third person. So it is so important. अगर फिर भी जो कुछ भी मैं दोबारा कहूँगा, डायलॉग डायलॉग डायलॉग, प्लीज आप बताइए ये जो काम किया आपने, काम ठीक नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करें, आप उसको ठीक करें। वन ऑफ द कंप्लेंट्स व्हिच द लेडीज आर हैविंग कि ये जो मर्द जो है मुझे मोहब्बत ही नहीं करता है, सही है। सो समटाइम्स हमें क्या होता है, वो हम कहते हैं स्वाइली के नोन, गुजराती में नोन कहते हैं, नोन यानी इंगेजमेंट पीरियड। तो हमारी जब ये इतनी एज आ जाती है, वो सारे आई लव यू वाले मैसेज खत्म हो जाते हैं। तो समटाइम्स आपका मोबाइल जब काम करते करते खराब हो जाए तो क्या करते हैं आप, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा तो क्या करते हैं आप, फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो समटाइम्स वी नीड द फैक्ट्री रीसेट एज वेल। गो बैक टू द नोन टाइम, engagement time, upgrade। अरे भाई ये एग्जाम्पल के बारे में मैंने भी नहीं सोचा था, मैं इसके खिलाफ हूँ, मुझे घर पे जाना है iPhone 15। हाँ देखें क्या होता है, कभी कभार मोहब्बत, देखें खुदावंद मुताला ने जो रिश्ता बनाया है, खुदावंद मुताला ने जो रिश्ता बनाया है वो मवद्दत और रहमत पे है। मवद्दत इज द बेस एक्चुअली, लव जो है, अफेक्शन जो है, वो लव और अफेक्शन दिखाइए। रिवायत में है कि एक औरत जब उसको आप कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता, आई लव यू, शी विल नेवर फॉरगेट दिस। समटाइम्स यू हैव टू डू दिस। हम लोग जो है एज अ मर्द जो है, हम लोग वीक होते हैं इसमें, हम लोग वीक हैं, हम नहीं बताते।
मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ. I'm going every day outside to work for you. Baba, this is the case. She knows this. She's just saying, Baba, रोज मोहब्बत के दो अल्फाज हैं. तो ये कभी कभार हमारे लिए that is necessary as well. I will have a discussion on that if I get a chance. Get 5 different languages of love. But for husbands, we just want good, perfect food. Husband wants perfect food. या सबको होमवर्क देते हैं. सही है. जाके अपने अपनी जो वाइफ्स हैं उनको जाके आई लव यू जाके कहें. बात होगा वो कल बताने का. जी. उसके बाद जो होगा वो कल बताने का. जो वो नहीं बताने का अपने तक ही रखेगा. वो बैनी व बैन अल्लाह होगा. आपके और आपके अल्लाह के दरमियान. थोड़ी देर पहले मारदार की बात. तो कभी कभार होगा. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बीवी को आई लव यू कहें. हाँ तो मौलाना के कहने पे मुझे आई लव यू कहते हैं. That can happen as well. See, खुदा ने कहा मवद्दत हमने रखा है, मोहब्बत पे रखा है. ये love और affection होना चाहिए. There are different ways. If I get the chance, there are 5 different languages of love. We can have a discussion on that. There are different ways. The ladies, they have to understand. Sometimes I tell you, for the ladies, जेंट्स के साथ हमारे साथ भी प्रॉब्लम है. हमने कोई गलती की है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम है. आज जो मथो वडो है, हम लोग जाके सॉरी नहीं करते हैं. हम लोग ना मर्दों के साथ प्रॉब्लम है. सॉरी जाके नहीं बोले. अगर ये आपका हस्बैंड आकर आपको गले लगा दे, आपके साथ आकर बैठ जाए, आपका खाना खाना शुरू कर दे, दिस इज ए सॉरी, टेक दिस एज सॉरी. ये सॉरी कर रहा है भाई, ये बोल रहा है सॉरी सॉरी सॉरी. मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं एक्शन से बोल रहा हूँ. मैं तुम्हारे पास आकर बैठ रहा हूँ. ये सॉरी है उसकी जानिब से. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉरी ना कहिए. भाई आप बोलेंगे मौलाना आपने सिखा दे सॉरी. नहीं कहिए आप. यू ट्राई योर लेवल बेस्ट. But sometimes it's difficult for men. For some people it's very difficult. So they are proving it in a different way. तो वो लैंग्वेजेस उनको आपको पता होनी चाहिए. ये लैंग्वेज उसको पता होनी चाहिए. ये मेरे पास आ गया और बैठ रहा है, इसका मतलब इसे खत्म कर दिया मामला. तो नहीं बोला तूने मुझे सॉरी नहीं कही, ये मामला खराब हो जाएगा. ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बताएंगे. ये सवालात बहुत है. मैं मेरे ख्याल सवालात इंशाल्लाह कल के लिए दूसरा सेशन होगा, उसके लिए मैं सवालात रखूंगा. Because if I take all these, besides Muhammad wa Muhammad